Hello, good morning, students. How are you? Yes, after a long time, we are going to meet here on the Scala English School online learning classes. And we have already started with the chapter number 3, playing with the numbers. And in that session, we have completed up to 3.3, unit 3.3. It is about divisibility test, different divisibility test we have seen, then common factors and common multiples, how to factorize, how to find out the multiples, that we have already seen. So now you have already finished unit test 1. Now it is we are going further for the semester first, and that will be nearly before the Diwali vacations, and so we have to finish up with the 2 chapters in the September. So let's try it for that. And exercise 3.4 now I am going to teach you. It is related to common factors. So what is common factor? You have already seen about the different numbers and how to find out its factors. Okay, now if the two numbers are given, then in that two numbers, which are the common factors, that you have to find out. Okay, so I will teach you some tricks how to find out the common factors. So let's take one example, that is if it is number given as 12 and the number given is 18. See, we can now we will make one f and that is other f. Okay, these are the two f for number 12 and number 18. Here we are going to find out the factors of each individual numbers first. So let's take 12 number. Okay, तो 12 नंबर जो है वो ये इसके फैक्टर्स कैसे हैं, तो ये मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, that I have already taught you in the previous chapter also, in the previous session also. So let's take first factor is 1, because always 1 and the number itself is a factor of that number. So we shall start with 1 number. यहाँ पे नंबर जो दिया है उतने 12 नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच नंबर कम्स इन दैट नंबर. ओके, इट इज डिविजिबल बाय विच नंबर. ओके, सो फर्स्ट 1, तो जो 1 हमने लिखा है तो 1 multiply by what is equal to 12. 1 12s are 12. So 1 12s are 12. That is the two factors. Next number आएगा, हमें चेक करते जाना है फॉर हर एक नंबर. ओके, नाउ द सेकेंड नंबर इज 2. So 2, you can see this number is even number, so it is divisible by 2. So 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 12. ओके, नेक्स्ट जो नंबर है 2 के बाद आता है 3. तो 3 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कैसे देखा है? 2 + 1 3 विच इज डिविजिबल बाय 3. सो 3 इज अगेन अ फैक्टर ऑफ 12. 3 के टेबल में कब 12 आता है? 3 4s. ओके, सो दिस इज अनदर फैक्टर. 3 4s 12. नेक्स्ट नंबर इज 4, अगेन 4. yes, and here you can fix it that whenever the number gets repeated, 3 4s 12, again 4 3s 6 2s 12 1s. these numbers are going to repeat again. तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे स्टॉप करना है. वहाँ पे आपके फैक्टर्स ख़त्म होते हैं. कहाँ पे? जहाँ पे नंबर ख़त्म होता है. ओके, यानी 3 4s 12, उसके बाद का नंबर आया था 4 3s 12. दैट इज वी हैव ऑलरेडी रिटन. ओके, लेट्स टेक अनदर. उसके बाद कैसे होता है वो बताती हूँ मैं. उसके बाद का नंबर है 5 डिविजिबल है क्या? 12 के टेबल में होता है क्या? नहीं, बिकॉज हियर 0 एंड 5 नहीं है. यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी जो भी टेस्ट दिए गए हैं वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिठा के रखना है. उसके बाद है 6, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन. 6 2s 12. उसके बाद है 7 के टेबल में 12 नहीं आता है. देन है 8 के टेबल में नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 1s 12. So these are the factors of 12. Now we shift to the 18 number. Okay,
So what are the factors of 18? Like this way we are going to write with the 18. So first factor is 1. 1 18s are 18. Okay. Next number है 2. 2 because this is a even number, it is also divisible by 2. So 2 के टेबल में कब आता है? 2 9s are 18. ओके. नेक्स्ट 3. 8 + 1 9. 9 3 के टेबल में आता है, यानी यस 18 भी 3 के टेबल में आता है. सो वी आर गोइंग टू राइट 3. 3 6 जा. ओके. 3 6 जा 18. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4. 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? लास्ट 2 नंबर्स जो है वो 4 के टेबल में आते हैं क्या? सो 18 वोंट कम इन द टेबल ऑफ 4. ओके. सो नेक्स्ट 5. 5 लिया, ये यहाँ पे 0 नहीं है, सो कट इट डाउन. नेक्स्ट 6 आता है, लेकिन 6 ऑलरेडी लिखा है, यानी अभी 6 3 जा 18, ये नंबर रिपीट हो गया, यानी आपको बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर ऑल फैक्टर्स. 9 2 जा 18 1 जा सेम होता है. 1 18 जा 2 9 जा 18 3 6 जा. नेक्स्ट 6 3 जा 9 2 जा 18 1 जा. सेम फैक्टर्स आने वाले. ओके. सो नाउ वी गॉट द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18. अभी इस दोनों में कौन से फैक्टर्स कॉमन है? कॉमन यानी सेम है. 1 आया है क्या इसमें? यस आया है, सो अंडरलाइन दिस 1. नेक्स्ट 2 आया है 18 में? यस आया है, सो दिस इज ऑल्सो कॉमन. 3 आया है क्या? यस आया है, 3 आया है, सो अंडरलाइन दैट नंबर. नेक्स्ट है 6 आया है? यस 6 आया है. यहाँ पे 4 है जो कि यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट 9 आया है क्या दोनों में? नहीं. 18 आया है? नहीं. सो वी गेट द कॉमन फैक्टर्स एज 1 2 3 एंड 6. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? हमें लिखना है कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमें मिले हैं? 1 कॉमा, यू हैव टू राइट द कॉमा बिकॉज दीज आर द इंडिविजुअल नंबर्स. 1 2 3 6. दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज GCF इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन. हाईएस्ट कॉमन इज अलग है, HCF इज डिफरेंट एंड GCF डिफरेंट. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6 है. सो यू आर गोइंग टू राइट द 6. इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके. G stands for greatest, that you have to keep in mind. और H stand for highest common factor जो है वो अलग मेथड है. GCF is different. Okay. So this is how you have to find out the factors. This is the method, very easy method. जहाँ पे आपको लगे कि अभी सेम नंबर रिपीट हो रहा है वहाँ पे स्टॉप करना है. ओके. सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 3.4. यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है. फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 28 15 25 35 50 56 120. Again we will take one example from that exercise so that you will come to understand it very clearly. So last example I will take 56 and 120. Okay. उसके हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने. सो लेट्स टेक नंबर 56. F बनाना है, उसके बाद है 120. इसके कॉमन फैक्टर्स. ओके. आई विल हम अलग अलग लिखते हैं बिकॉज इट मे टेक मोर स्पेस. सो 56 एंड 120. F निकालना है आपको. ओके. यस. सो फर्स्ट कॉमन फैक्टर 156. नेक्स्ट 2 बिकॉज दिस इज इवन नंबर, सो 2 से डिविजिबल हो सकता है. तो 2 के टेबल में कब आएगा? तो आपको यहाँ पे डिवीजन करना है. 2 से 56 को डिवाइड करना है. तो ये ओरली भी आता है. आई विल टेल यू हाउ टू डू इट ओरली. तो हम जब डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो लेफ्ट नंबर होता है उससे लेफ्ट टू राइट जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन में राइट टू लेफ्ट आते हैं हम. ओके. सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन हो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं. लेकिन डिवीजन में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं. इसीलिए फर्स्ट नंबर 5 है. 2 के टेबल में 5 कब आएगा? 2 या उससे कम नंबर आता है. 2 2 जा 4. 2 2 जा 4.
5 में से 4 गया, 1 बचा। 1 जो है वो 6 के पहले लगाना है, ओके, क्योंकि हम ये 6 नीचे लेते हैं, इसका जो रिमाइंडर है उसके साथ हम 6 को मिला देते हैं, यानी 1 6 16 हो गया। तो 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ 228 जा 56। ओके, नाउ 3 की डिविजिबिलिटी, 6 + 5 11। 11 टेबल 3 के टेबल में नहीं आता है, सो कैंसिल इट। 4 का कैसे देखना है? 56। दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ये चेक करना है। ओके, तो 4 के टेबल में ये आता है कि नहीं, आपको बाजू में जाके देखना है। हम देखेंगे 4 1 जा 4, ओके, 5 - 4 1 आया, उसके बाद 6 नीचे गए 16, यस आता है, यानी 4 भी आएगा। 4 1 जा 4, 4 गया 1 16, 4 4 जा 16, यानी 14 4 जा 56। ओके, नेक्स्ट नंबर 5। 5 में से नहीं, बिकॉज 0 और 5 नहीं है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 5 है। 6 का कैसे करना है? जो 3 के भी टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो ये देखो, ये हमने पहले ही देखा है, ये 2 के टेबल में आ रहा था, 3 के नहीं, तो 6 के भी टेबल में नहीं आएगा। 7 का देखना है, 7 के टेबल में आता है, यस 7 8 जा 56। नेक्स्ट नंबर इज 8, तो 8 7 जा, यहाँ पे रिपीट हो गया, तो आगे की देखने की जरूरत नहीं है। 8 7 जा 56, 14 4 जा 28, 2 जा 56 1 जा, यही नंबर आने वाले। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट, दैट इज 120। 120, उसके बाद आएगा 2, बिकॉज 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 12 जो है, 2 6 जा 12 और 0, ये डिवीजन करनी है। ये 12 नंबर पहले लिया हमने, 2 6 जा 12 और 0 बचा है वो 0। ओके, नेक्स्ट 3 के टेबल में आता है, 2 + 1 3, यस 3 के टेबल में भी आता है। 3 4 जा 12 और एक 0। नेक्स्ट 4 के टेबल में भी आएगा, 4 3 जा 12। ओके, नेक्स्ट 5 के टेबल में आएगा, क्योंकि 0 है तो 5 के टेबल में भी आएगा। 5 के टेबल में कैसे आएगा? 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए, 2 बचे हैं 20। 5 4 जा 20। ओके, 5 4 जा 20। नाउ 6, यहाँ पे हम नीचे लेंगे अभी फैक्टर्स। 6 के टेबल में आता है, बिकॉज 1 2 12 है, 6 है। 2 और 3 के टेबल में आया, यानी 6 के टेबल में आ गया। यहाँ पे हमने 2 और 3 दोनों लिए हैं, तो ये 6 के टेबल में भी आएगा। 6 2 जा 12 0। नेक्स्ट 7 के टेबल में आता है क्या? 7 का देखना है, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गए, 5 बचते हैं, 50 नहीं, 7 से नहीं होता है। 8 से देखना है, 8 की डिविजिबिलिटी है, तीनों नंबर लेने हैं और 8 से डिविजिबल होता है क्या देखना है। तो 8 से हम कैसे देखेंगे? 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए 4, 40 नंबर 8 के टेबल में आता है क्या? नहीं, यस 8 5 जा, सो 8 भी आया। 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए 4 0 नीचे आया, यानी 40। 8 कितने टेबल 8 के टेबल में 40 कब आता है? 5 जा। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 9। 2 + 1 3 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो 9 नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 3 में आया इसलिए 9 में आएगा, ऐसे कुछ नहीं है। इसकी एडिशन अगर हमने देखी तो 2 + 1 3 ये नंबर 9 के टेबल में नहीं आता है, सो 9 से डिविजिबल ये नहीं है। नाउ 10 से की आएगा, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 0 होता है वो होता ही है, सो 10 12। ओके, और ये देखो, ये नंबर डिक्रीजिंग होना चाहिए आपका, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, ये डिक्रीजिंग आता है क्या देखो, नहीं तो तुम्हारा कहाँ तो गलत हो रहा है डिवीजन। ओके, 11 के टेबल में आता है क्या देखना है। 11 1 जा 11, 1 बचा है 10, यानी नहीं होता है। नेक्स्ट 12 के टेबल में आएगा, 12 10 जा। अभी देखो यहाँ पे रिपीट आ गया 12 10 जा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन 12 एंड 10, तो 12 10 जा नहीं लिखना है। तो ये सब नंबर से वहाँ पे ही स्टॉप होना है, जहाँ पे रिपीट होता है नंबर वहाँ पे स्टॉप होना है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स हो गए। अभी इसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ये सब हो गए 120 के इतने सारे, और ये 56 के हैं। तो इसमें से कॉमन कौन सा है? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 7 इसमें नहीं है। उसके बाद 8 है क्या? हाँ 8 है,
ओके। उसके बाद 14 नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। ओके, सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन फैक्टर्स कौन से आए? 1, 2, 4, 8, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। ओके, गॉट दिस? 1, 2, 4, और उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 8 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, द क्वेश्चन 1 जो है फाइंड फैक्टर्स, सेकेंड भी है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8, 12। यहाँ पे 2 की जगह 3 दिए हैं, तो तीनों में से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है राइट ऑल द, नहीं, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स। यस, मल्टीपल बोला है, यानी अगर यहाँ पे देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसमें से मैं बताती हूँ कॉमन मल्टीपल। जैसे हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए, वैसे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करना है? लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे दिया है 6 एंड 12, 12 एंड 18। तो एक लेती हूँ मैं 6 एंड 8। यानी आपको क्या करना है? 6 का टेबल लिखना है, और उसमें से आपको कितने करने हैं? फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स। 6 का टेबल, 6 1 ज़ा 6, ओके, 6 2 ज़ा 12। ये टेबल ही लिखते जाना है। 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 42, 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। वैसे 8 का, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अभी इसमें से 3 पहले आते हैं क्या देखने? 6 है क्या इसमें? नहीं है। 12 है क्या? नहीं है। 18 है क्या? नहीं है। 24, यस 24 इज देयर, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद 30 है क्या? नहीं है। 36 नहीं। 42 नहीं। 48, यस 48 इज देयर। 54 है क्या? नहीं है। 60 नहीं है। तो और एक बचा है, तो और उसके आगे आगे भी लिखते जाना है। उसके आगे हम लिखेंगे, अभी यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ 6 और 8 का, यानी 11 6 ज़ा 66, 12 6 ज़ा 72। यहाँ पे देखो अभी 72 आ गया, यानी ये हमारे 3 मल्टीपल्स मिल गए हमें। यस, हमें मिल गए 3, यानी कॉमन मल्टीपल जो है CM, यानी कॉमन मल्टीपल कौन से मिले हमें? 24, 48 एंड 72। दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। यानी आपको टेबल लिखते जाना है और उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में मल्टीप्लिकेशन होगा, फैक्टर में डिवीजन होगा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 100 से पहले यानी 99 तक के नंबर आपको लेने हैं, उसमें से 3 और 4 के कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड आउट। यानी 3 और 4 का टेबल आपको इस तरीके से लिखना है, 99 तक आना चाहिए। ओके, तो 3 का जो है वो 99 तक, यानी 11 3 ज़ा 99। ओके, वैसे 4 का भी आता है कौन सा नंबर, वो लिखना है। तो और उसमें से आपको जितने भी कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स है उसको आपको लिखना है। ओके, कॉमन मल्टीपल पूछा है तो मल्टीपल लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज मीन बाय को प्राइम। ओके, तो वो आप देखो वीडियो, और को प्राइम क्या है देखो, और फाइंड आउट करना है को प्राइम नंबर क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल? ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है? ओके, यानी 5 के भी टेबल में आता है और 12 के। तो जनरली देखो, जब 2 नंबर दिए हैं तो 5 12 ज़ा करना है, 12 5 ज़ा, दैट विल बी अ कॉमन नंबर। यहाँ पे आप ध्यान में रखना है, अगर 2 नंबर आपको दिए गए हैं तो सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो वो सेम नंबर आएगा ही ना। 5 के टेबल में क्या है? 12 5 ज़ा कितना आता है? 60। तो ये 60 जो है वो दोनों के टेबल में आ सकता है। ओके, तो
बाय विच अदर नंबर विल द नंबर ऑलवेज डिविजिबल, दूसरा और कौन सा नंबर है जो जिससे ये नंबर यानी 60 नंबर डिविजिबल है, वो आपको लिखना है. अ नंबर, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 7. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, यानी एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है. बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, यानी एक ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है और दूसरे कौन से नंबर से डिविजिबल होता है, वो आपको लिखना है. ओके, सो राइट डाउन द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन आफ्टर 2 days. ओके, सो थैंक यू.